Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Since we have completed the positioning logic within the context of strategic marketing management, we are going to start the strategizing process for the 4 Ps that we had been discussing. And in this context, we would like to not only see what strategies can be put into position for each of the 4 P, but we would also like to see कि जो strategic decision making है वो किन किन चीजों पे मुहित है, how much or what is the scope of the decisions that we need to take within each area of the 4 Ps. So today we are commencing the logic of product strategies. In this process we will first try and understand कि product को हम कैसे consider करें, because each time we look at the product and its type, it tells us what kind of decision might be necessary within that framework. Example आपको दूं, अगर एक product है जिसकी, जैसे मैंने आपको relationship marketing में जिक्र किया था कि there is a area where product dominates, the tangible dominates, and on the other side services में the service dominates and the product is a very little component, and two extremes can be seen. Let's say salt is a pure product, iron, स्टील के जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक टोर स्टील या टी आयरन जो होते हैं वो प्योर प्रोडक्ट फॉर्मेशन में होते हैं, और फिर दूसरी तरफ अगर हम डेंटिस्ट को देखें या यूनिवर्सिटी एजुकेशन को देखें तो दे आर मोर अट्यून टुवर्ड्स सर्विस प्रोविजन एंड इंटेंजिबल प्रोविजंस. और immediately that we have these two contextualizations, we know that the strategic decisions will differ between the two contexts. So पहले हम काम करेंगे to try and understand the logic of seeing products within their various dimensions. Once we have agreed upon that, we will then further go into the areas where we should be looking at the types in terms of कि कहाँ और कौन से जो major components हैं हमारी business के अंदर जहाँ हम products को या services को बेचते हैं, तो उसके हवाले से देख लेंगे. Once we have got that 2 or 3 things into position, we will start looking at the product strategizing process or product strategies कैसे बनती हैं और उनके पीछे जो tools हमारे पास हैं, those tools that will guide us, we will also discuss them. Once we have finished this whole process, we will then shift our focus to looking at purely service marketing, because service marketing की जो considerations हैं वो थोड़ी फर्क हैं. Now, to be able to get these whole logic into position, the first thing we need to do is to try and define what is the product. Without going into lengthy discussions, anything that is sold for or given in exchange for something, we can call it a product. Anything. I mean, it does not make a difference whether it's an idea that you give, whether it's an image that is created, whether there is a usable book that you sell, whether there is a table that you will be selling for a purpose. Anything that is sold in exchange becomes a product. और चूंकि business के setting में है तो product has to be in terms of providing value to the consumer as well as to the seller. अगर वो दोनों चीजें नहीं हैं तो हम उसको एक उस लॉजिक में कंसिडर नहीं करते हैं. हालांकि जो चीज दी जाएगी अगर वो गिफ्ट के तौर पे भी दी जाएगी तो उसमें भी प्रोडक्ट का आंसर है. सो वी शुड लुक एट प्रोडक्ट फ्रॉम अ कंटेम्पररी होलिस्टिक फ्रेम. मिसाल के तौर पे उसमें आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर आल्सो प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर आल्सो सोल्ड टू द वोटर्स. इन द सेम वे आइडियाज आर सोल्ड. We see a number of new ideas moving in and people try and convince. We see products in terms of characteristics and we see products in terms of intangibles. So anything that can be sold and that can be considered of value by the consumer, we will call it a product, irrespective whether it has got higher tangibility in it or higher intangibility in it. So whatever it is, we will call it a product. Given this, we need to be looking at the various dimensions that we look at to be able to understand के products होते क्या हैं. तो उसमें अगर हम गौर करें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें temporal frame आ जाता है. Temporal frame is time taken for consumption, time taken to purchase,
time taken to use. So anything that would be considered within the context of a time frame can also be, we can also use that to facilitate us to understand the logic of the product conditions. दूसरा behavioral है. Behavioral क्या है कि how does a consumer buy a product? Or does he spend time in buying the product? What kind of behaviors are involved? What kind of decision makings are required to facilitate him to buy? So we can look at the products from that context also. Finally, we can also see from again the behavioral or psychological framework कि एक शख्स कितना involved हो जाता है purchase decision में. So we can look at it from that angle also. But if we look at it from all these angles, we come to a few conclusions. मिसाल के तौर पे यूजर है. यूजर कौन है? अगर खुद अपने इस्तेमाल या हाउस होल्ड के इस्तेमाल के लिए है तो वी विल कॉल दैट अ कंज्यूमर प्रोडक्ट बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय द consumer, with the final consumer, the targeted consumer. We will say that that product falls within the context of a consumer market, or it is a consumer product. On the other side, we can see that these products are going to be used by somebody to produce another product, or will be used to produce another product. So we will call it industrial. Now, if we look at these two, we will still see that there are certain underlying conceptualizations which help us determine कि within the consumer product किस किस्म का behavior है और timely consumption patterns क्या हैं. On the same side, we can look at the industrial products and we can see कि उनके consumption patterns या उनकी purchase behaviors या उनमें time जो spend होता है किसी चीज़ को खरीदने में, तो वो भी classifications में हमें मदद कर देती हैं, and they become a very strong component in terms of when we take strategic decisions. For example, within the consumer product markets, क्या नाम है, इससे पहले मैं उसकी बात करूं तो जैसे मैंने कहा था कि इन्वॉल्वमेंट है, साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, बिकॉज हाउ मच इन्वॉल्वमेंट इज रिक्वायर्ड और हाउ मच इन्वॉल्वमेंट विल बी इंड्यूस्ड by the marketer in the consumer is a very significant frame when we will be developing our promotion या advertising strategies. क्योंकि जिस वक्त हम इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं और देखते हैं कि ये कंज्यूमर एक प्रोडक्ट के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है इन दी परचेज डिसीजन मेकिंग या इन स्टडिंग और एनालाइजिंग और लुकिंग एट द डेटा रेलेवेंट टू द प्रोडक्ट और एनालिसिस करता है, तो फिर हमारी जो मार्केटिंग कैंपेन चलेगी, जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलेगी, दैट विल आल्सो बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस लॉजिक. इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होंगे, मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स टाइम स्पेंड करता है परचेज के अंदर, ही हैज़ टू लुक एट द प्रोडक्ट, मूव इट अराउंड, सारा कुछ करेगा, तो फिर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की स्ट्रैटेजी है वो भी लॉजिकली उसके साथ एसोसिएट होगी. अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी लो इन्वॉल्वमेंट है, low involvement means particularly that a person does not have to waste time, does not have to become emotionally involved in the purchase. तो वहाँ आपके लिए जो distribution channel strategy है या promotional strategy है वो इतनी complicated नहीं होगी in terms of what and how much information should be provided. So having said that, now we look at the consumer products and see, can we identify components within that where we can see which will help us in the strategic decision making. So अगर एक प्रोडक्ट है जो कि एक शख्स रेगुलर बेसिस पे खरीदता है और टाइम उस पे नहीं लगाता, he has got so used to the product, तो वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहलाते हैं, जिसके अंदर वो हमारी आसानी के लिए हैं. वी ऑलरेडी रिकग्नाइज कि हमारी चॉइस क्या है, वी ऑलरेडी रिकग्नाइज कि कैटेगरी कौन सी खरीदनी है, विद इन द कैटेगरी वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास ब्रांड्स कौन से हैं, we already have made specific choices. और अगर एक चॉइस हमें नहीं मिलती तो हम बगैर सोचे, without putting too much of thought, we would pick up another product. Now this kind of a product is called a convenience product, which means it is based on the logic of providing convenience to the customer. उसकी availability convenience में होगी, उसके product dimensions जो हैं, the specifications, they will all lead to making it convenient. On the other hand, if we look at it, we will see that there are some consumers who will visit shops
and compare brands or products on the basis of the prices, on the characteristics of the product, and so on and so forth, and they do not buy immediately the product like they would do in a convenience good framework. They most probably will take some time. They will go to the shop, get information from the salespeople, go back to their homes, have a discussion on it, come back to the market, visit another shop, look at the product. The reason why, because they are now shopping for the product. They are now trying to find the best buy in the market. If that happens, we call that kind of a product as a shopping product. And you can really understand कि जो मैंने convenience का example दिया और shopping का दिया, तो इनके पीछे marketer के लिए जो strategic decisions हैं, वो नजर आने शुरू हो जाते हैं कि they cannot be the same. If a convenience good has been perceived by the market as a convenience good, then there are only two possibilities, is to break that logic of the product becoming a convenience good, which basically means कि अगर वो ना हो या शौकिया तौर पे एक क्या नाम है कंज्यूमर जो है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट को उठा लेगा. But when you go into a shopping product category, तो वहाँ कई चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, which becomes important, and the competition continues कि choice कौन सी होगी. और choice जो है वो depend करेगी on a number of features, and it is for the marketers to understand which feature or which of the characteristics is more significant from the point of the consumer and what will attract him more, so that the marketer can promote those areas. तो शॉपिंग गुड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑब्वियसली फर्क हो जाती है, और हर मार्केटर की कोशिश यही होती है कि अगर उसका प्रोडक्ट कन्वीनियंस में आ रहा है तो ही विल ट्राई एंड पुश इट, ब्रेक दैट लॉजिक ऑफ कन्वीनियंस to make it more into a shopping category where at least the marketer has an opportunity to say, do, or present something that will facilitate the choice. Now, but अगर हम देखें कि एक शॉपर जो है वो मार्केट में जाता है, दुकान पे जाता है and asks for a particular brand, और वो ब्रांड अवेलेबल नहीं है, तो द मार्केटर और द सेलर जो है उस दुकान में वो उसको ऑफर भी करता है कि we have another component or another type of brand which is available, and if you want to look at it, you want to buy it. So the consumer replies कि नहीं, I am not interested, and then he asks कि कब आ जाएगा, कब तक पहुंच जाएगा. The retailer might say हफ्ता लगेगा, 4 दिन लगेंगे, लेकिन here is another brand, but the consumer says no, I will wait. When the product comes into the market, I will go and buy it. Now this kind of a product is normally called a specialty product, which means it has a special status for the consumer. And normally जो एक गोल है एक मार्केटर का, वो ये है कि उसका प्रोडक्ट जो है उसकी नौयत स्पेशलिटी की तरह हो जाए, so that no other brand can be a brand of choice against the marketer's brand. So if the marketer has been able to achieve that level, so people will wait till the product or the brand appears in the market. और अगर आप थोड़ा सा क्या नाम है हमारी लास्ट लेक्चर में जाएं, तो वहाँ जो हमने बोला था about the ladder of choice that comes into position, or the ladder of consumer association with the product, तो हमने यही कहा था कि पहले एक कस्टमर जो है और जो प्रोस्पेक्ट होता है वो परचेज करता है, he purchases it just for the sake of testing or trying or whatever. But the final goal is that the marketer would like the consumer to become a supporter or a partner in the system. When the person becomes a partner, तो लॉजिक कहता है कि पार्टनर आपके प्रोडक्ट को छोड़ेगा नहीं, और वही is the goal of any brand manager or a product manager who will try and make sure that his product can be classified in that area. This becomes an interesting phenomena because हर area में convenience, shopping, specialty, उसमें strategic decisions vary करते हैं. However, there is one more category of a product that might be in the market, but that is not being even looked at by the customer. या customer उस product को avoid करते हैं, या उनके खिलाफ उसकी ऐसी reputation हो चुकी है कि they don't even want to consider it within a scope of or a set of brands or products that they carry in their mind.
क्योंकि आपको पता होना चाहिए व्हेनेवर वी गो इन द मार्केट, रिसर्च भी ये सजेस्ट करती है कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो 4 से 5 ब्रांड्स उस प्रोडक्ट कैटेगरी के आपके जहन में पहले ही होते हैं. देयर इज नोन एज दी सेट, दी चॉइस सेट दैट वी हैव, बिकॉज उसमें से हम कोशिश करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को हम पिक कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन which category of brand or product is located into the categorization that we have just expressed. Convenience है, shopping या specialty. तो वो जो कि अभी तक किसी ने उसको अपने ब्रांड सेट में या प्रोडक्ट सेट में ना लाया हो, तो वी कॉल इट अनसॉट. अनसॉट का मतलब है कि उसको कोई ना कोई चॉइस में ला रहा है, ना चॉइस सेट में आ रहा है, ना कंसिडरेशन में आ रहा है. सो इट इज स्टिल नॉट लोकेटेड विद इन दी लॉजिक ऑफ अ कंज्यूमर. अगेन अगर आप देखें तो अगर ये प्रोडक्ट कैटेगरी है या एक ब्रांड ऐसा है कि विच इज नॉट विद इन दी जनरल टारगेट जो है आपकी मार्केट, उसमें अभी तक वो उसकी कैटेगराइजेशन इज स्टिल इट इज बीइंग अनसॉट, दैट मीन्स इट इज नॉट बीइंग फाउंड और लोकेटेड और ब्रॉट इनटू द चॉइस सेट, तो वहाँ strategic decisions are totally different. Maybe the requirement which we'll be discussing at a later stage could be that awareness नहीं है इसलिए unsought है. अगर unsought है, awareness create करना would become the first framework. The second framework would be that this unsought product or brand should move into the choice set. Choice set वो होते हैं, वो brands होते हैं जो आपके choice में आ जा चुके होते हैं, और normally हम कहते हैं कि 4-5 से ज्यादा चॉइस सेट में किसी एक वक्त पे नहीं होते, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द पॉसिबल ब्रांड दैट एग्जिस्ट विद इन दैट प्रोडक्ट कैटेगरी. तो लॉजिक है कि जो अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए पहला काम मार्केटर का ये है कि ही शुड और शी शुड स्विच द अनसॉर्ट टू द चॉइस सेट और द कंसिडरेशन सेट, जहां के द प्रोसेस ऑफ seeking, searching शुरू हो जाती है, और we will move into a framework where we will take the logic of a consumer decision making. जब process में आता है तो वो क्या करता है और कैसे देखता है. तो these were consumer oriented products, but then we have, like I said, the industrial frame, जहां हम देखते हैं कि B2B marketing ज़्यादा है और उसको हम consider करते हैं in various categories. Again, each category that I will be talking about require a certain behavior from the marketer in terms of decision making processes. कई complex में चले जाते हैं decision making, कई simplified processes होते हैं decision making के लिए, but each has its own category, and we can see that immediately when we look at the product categorization that I am presenting to you. Now within that there are installations. Installations are large scale machinery which is sold for a particular purpose. तो आप गौर कर सकते हैं कि इसमें टाइम, जो बायर है उसका टाइम कितना लगता होगा. कई दफ़ा साल लग जाते हैं इन टेकिंग अ डिसीजन कि कौन सी मशीनरी या किस कंपनी से प्लांट खरीदा जाए, और उसको कैसे उसके उसके जो लॉजिक्स हैं ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट कि विच प्लांट वुड गिव द बेस्ट रिजल्ट, विच प्लांट विल प्रोड्यूस द बेस्ट प्रोडक्ट दैट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट, टेक्स टाइम, एंड दे आर नॉर्मली हेवी प्राइस्ड. उसमें प्राइस इतनी होती है कि जो बायर होते हैं, particularly industrial buyers, they become heavily involved in it, and they are not just one person who is to take a decision, but a complete group of people become partners to that decision making. On the other side we have accessories. Now एक business के अंदर accessories की logic ये है कि मिसाल के तौर पे computers खरीदने हैं, they are accessories to the processes that we require. Trucks लेने हैं, we need some fax machines, we need some photocopying machine, they are all accessories. Now इनकी लाइफ जो है वो जो इंस्टॉल्ड मशीनरी या जिनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं उनसे कम होती है, लेकिन ये भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट कंपनी का जो है उसमें इन्वेस्टमेंट में जाता है. ये भी आप देखिएगा कि इंस्टॉलेशन तो एक दफ़ा ख़रीदा जाएगा एक ही दफ़ा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सेसरीज में आते हैं, दे कम बैक इनटू द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. However, raw material जो है, which is particularly in the shape of something which will go into the production of the final product, तो वो regular use में आता है, यानी कि it is being used and spent and क्या नाम है spending is on a regular hour to hour
मिनट टू मिनट, डे टू डे बेसिस में। तो उसमें भी लॉजिक ये होता है कि दे आर परचेज्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म रादर देन एन इंस्टॉलेशन और एन एसेसरी। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। दे आर नॉर्मली सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स which become part of the finished product in its production process. तो स्क्रूज हैं, नट्स एंड बोल्ट्स हैं, ये वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप एक कंपनी जो है वो खरीदती है और फिर उनको इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट बनाने में। अगर हम आ जाएं सर्विसेज मार्केटिंग की तरफ, उसमें हम सर्विसेज मार्केटिंग में ज़्यादा दूर नहीं जाएं। लेट्स से अगर हम एक रेस्टोरेंट बिजनेस में आ जाएं, तो बन्स, अगर हम मैकडोनल्ड की तरफ जाते हैं तो जो बन्स होते हैं, उनके जो पैटीज होती हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दी क्या नाम है कंपोनेंट्स विच इज बेसिकली व्हाट गोज इनटू द प्रोडक्शन। कई चीजें वो प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल दे बाय रॉ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ बीफ, और बीफ की जो कीमा है वो खरीदा जाता है फ्रॉम वेरियस एरियाज, और मे बी दे बाय बीफ, मेक द कीमा themselves. They can also have their own bakeries, but they can also buy buns for the purposes of making their burgers from another source. तो ये जो components हैं which become part of the final product are semi-finished in the sense that the company itself is not producing them, but somebody is doing it, a small part of it is being produced and sent into the company which then becomes part of it. Typically cars में जो मुख्तलिफ उनके कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे स्टीयरिंग व्हील इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय समबडी, द वाइपर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय समबडी, द ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय समबडी, बट द कंपनीज व्हिच आर विद इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मे बी प्रोड्यूसिंग देयर ओन इंजन्स। सो इसमें जो लॉजिक है वो स्पेशलाइजेशन की लॉजिक है कि आप वो चीज़ें जिसमें आप खुद वो स्पेशलाइजेशन नहीं रखते या कैपेबिलिटी नहीं रखते, you normally outsource them, and that comes into position. Finally, there is a component called supplies. They are all support material for the company's operations. So they cannot be classified कि वो किसी production process में जाएंगे या वो उसका कोई end product होगा. They are purely used as क्या नाम है in the support process which they expend, they are spent very rapidly. इनका जो होता है supplies का और जो एक्सेसरीज मैंने कहा था, उनका फर्क ये है कि दोनों सपोर्ट सिस्टम में है, लेकिन एक की कंजम्पशन इज फार रैपिड देन दी अदर कंपोनेंट। सो एक्सेसरीज की जो कंजम्पशन पैटर्न है वो स्लोअर है, लेकिन जो सप्लाईज होती हैं वो तेजी के साथ कंपोनेंट्स में सपोर्ट सिस्टम्स में इस्तेमाल हो जाती हैं। अब अगर हम ये तीनों चीज़ों सारी चीज़ों को समझ लें तो दूर से ही हमें फ्रॉम द वेरी पॉइंट ऑफ विजन we can see that strategic decisions will be different for each category. और ये जो difference है ये ना सिर्फ production processes के अंदर है, इसके अंदर innovative frames जो भी बेच रहा हो इन चीज़ों को उसके अंदर भी होगा, और उसमें जो communication systems हैं वो भी vary करेंगे। और ये सारे जो decisions हैं we have to take them into the condition of in the long term frameworks, which is very significant for what we can do and what we cannot do. Now we move into the product related decisions which are very significant to carry out our strategizing. और इसमें मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनको स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के हवाले से बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जांपल पहला प्रोडक्ट डिसीजन जो होता है वो ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट हम बनाएं या जो हमारे पास है हम इसको किस मार्केट में लेकर जाएं, सो दैट मार्केट और नॉट वन सिंगल मार्केट बट मल्टीपल मार्केट्स बिकम द लॉजिक ऑफ व्हाट वी स्टार्ट। हमें यह भी समझ आ जाना चाहिए कि ग्रोथ में या एक कंपनी का जो प्रोग्रेस है या जो कंपनी की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो टोटली डिपेंडेंट होती हैं कि उनके पास कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, और ऑब्वियसली कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में होने का जो लॉजिक है इज डिपेंडेंट ऑन the number of markets that you want to target and the number of products that you can sell in those markets. Let me give you an example. अगर एक ही प्रोडक्ट है और एक ही मार्केट है तो खतरात क्या हैं? The possible problems are कि अगर कोई कंपैटिटर थोड़ा सा भी बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में ले आएगा तो दिस सिंगल प्रोडक्ट जिसके ऊपर सारी कंपनी बेस कर रही है अपने काम को, तो
it will be hurt, not only hurt, उसकी जो सर्वाइवल है वही मुश्किल में चली जाएगी। तो इसलिए उस प्रोडक्ट डिसीजन में एक डिसीजन जो खास और खास लिया जाता है वो ये है कि ये प्रोडक्ट हम कितनी मार्केट्स में लेकर जाएं या हम कितने प्रोडक्ट्स बनाएं जो अपनी करंट मार्केट में हम उसको मेंटेन करने के लिए रखें। और इसमें अगर आप याद करें तो वी हैड डिस्कस्ड the logic of strategic orientations in the beginning when I was talking about overall frame of strategic marketing. तो वहां मैंने आपको 4 orientations की बात की थी। Number 1 was analyzer strategy, the number 2 or orientation, the second was prospector orientation, and the third was defensive orientation. और finally हमारे पास एक कैटेगरी थी reactor, हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इन तीनों फ्रेम्स को अगर हम रखें अपने सामने, जो एक बिहेवियरल फ्रेम है किसी भी कंपनी का, तो जो प्रोस्पेक्टर्स होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड मूव इनटू न्यू मार्केट्स। तो वो एक लॉजिक कहता है कि उसके लिए उस कंपनी की ग्रोथ, उसकी सर्वाइवल के लिए रैपिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट बिकम्स अ कोर इशू। ऑन द अदर साइड अगर हम एनालाइजर्स को देखते हैं तो वी हैड सजेस्टेड दैट एनालाइजर्स आर दोज पीपल हु एनालाइज द होल मार्केट, look at all the various products in the system, see where the opportunity is, and then develop their product either through new product development process or by acquisition to move into a new market area or new market opportunity. तो उनकी जो logic और strategic decision making है वो फर्क होंगे then from the people who are in the prospectors strategic orientation. Finally, we have already discussed that there is something called defensive strategy or defensive strategic orientation. Now in that condition the company has taken a decision कि हम अपनी market को ही protect करेंगे, so maybe they either have the same one product but they have developed certain capabilities in the system which will protect their position in that market, or they will add within the product category, within the product system, certain product within the product line to make sure that they have a strong position within their segment or niche that they have created. Now, अगर आप ये दोनों चीजों को लिंक करें जो एक पहले बात की गई थी in the very beginning, and now today we can see the logic of what we are expressing. Therefore, one of the significant decisions the companies take is normally related to the markets or market that they will be entering or playing with. अगर उनको ये चीज क्लियर हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन है वो हम ले आते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रेम वुड बी, लाइक आई सेड, शुड दे डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट और शुड वी एक्वायर अ प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। और हमारे पास बहुत सारी कंपनीज के एग्जांपल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट का है, वी इवन सी गूगल डूइंग द सेम, वी नाउ सी फेसबुक doing the same, though I'm quoting you service oriented industries, but they are constantly acquiring companies to move into new products and new markets. Facebook ने WhatsApp application खरीदी, मकसद क्या था, and they paid a substantial amount of money, तकरीबन अरबों में डॉलर्स में उन्होंने इस कंपनी को खरीदा था, because they wanted to move into a new product area. So they have done it, but that was part of their strategy or strategizing logic. Microsoft has been doing that for a long time. Google has also started doing that. उसका मकसद ये है कि they do not want to depend on one product which can be hit by a number of competitors in the market. और चूंकि कंपटीशन की जो डायनेमिक्स हैं वो इतनी रैपिड हैं कि एक प्रोडक्ट को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है. So the logic then therefore is कि one product is dangerous, may be very risky, so multiple product systems are being developed to protect the market or protect the company and ensure its rapid or continuous growth which is being targeted. तो हम इस पे भी बात करेंगे. Now the third क्या नाम area is कि जैसे मैंने आपसे पहले कह दिया कि किन किस्म के प्रोडक्ट्स में आप एंट्री करना चाहते हैं. Would they be kind of a specialty product which is purely with only one company, or would you try to undertake your development or your marketing campaigns taking them into a consumer product category, or would you go to a service marketing category? Whatever it is, you have to take a logical decision because it will all depend on the resources that the company has. Where you find you have strong resources,
you would like to enter those markets. मैंने बात कर ही ली है कि प्रोसेस क्या है, न्यू प्रोडक्ट या एक्विजिशन. मिसाल के तौर पे फिर इसी में डिसीजंस, प्रोडक्ट्स के अंदर जो डिसीजंस जो क्रिटिकल हैं या जिनको हम स्ट्रेटेजिक बोलते हैं, वो है टेक्नोलॉजीज कौन सी इस्तेमाल करनी है. अब एग्जांपल दे रहा हूँ सैमसंग का. उनकी जो टेलीविजन की मार्केट है, would they now want to stay with the plasma television? Would they move to LED framework, or should they go to LCD or any new frame that is being developed? Now each of this requires strategic investments into the product, and that is why I started my lectures with trying to identify के strategic decisions होते कौन से हैं, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म implications होते हैं, फंडिंग्स उसके अंदर जाती हैं, रिवर्सिबल बड़ी मुश्किल हो जाती है. तो उसमें कि जो प्लेटफॉर्म है टेक्नोलॉजी का वो क्या होगा. हम अगर अपने ही सोप्स को ले लें या अपने ही मार्केट्स में आ जाएं, तो सूफी सोप या गाय सोप जो था, किसी ज़माने में उन्होंने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था या जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, वो प्योरली फैट को, जो फैट के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके उन्होंने सोप बनाया. फिर सोप को उन्होंने छोटे छोटे उनके जो जिसको कहते हैं ना शेविंग्स करके, तो उसको वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग शेविंग्स के तौर पे ले आए. देन दे शिफ्टेड एंड मूव्ड इनटू ऑयल एंड घी प्रोडक्शंस. सो यू कैन सी दैट द कंपनीज डू समथिंग where they want to continuously survive and grow, so they need to make these decisions, and every time a new product category is being launched, they have to take a decision कि technology कौन सी हम लेकर आएंगे. Finally, जो कुछ associated decisions हैं जो प्रोडक्ट से बजाते खुद ताल्लुक रखते हैं, उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. एक है पैकेजिंग. हम उसको सेपरेटली नहीं देखेंगे, लेकिन पैकेजिंग डिसीजंस आर वेरी क्रिटिकल, बिकॉज आजकल के ज़माने में चूंकि मैंने कहा कन्वीनियंस, डायनेमिज्म, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन, कंज्यूमर की बेनिफिट्स, तो पैकेजिंग जो है वो एक ख़ास क्या नाम है उसकी, एक ख़ास स्टैंडर्ड या एक ख़ास उसका एक रोल है जो वो प्ले करता है प्रोडक्ट डिसीजन में. तो प्रोडक्ट हम कहते हैं कोर में जो चीज़ बैठी हुई हो, लेकिन उसको जो आप उसके आसपास जो उसको पैकेज करने का मामला है, उसमें दोनों किस्म की पैकेजिंग होती है. एक पैकेजिंग है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए है, जो कि इधर इन द शेप ऑफ कार्डबोर्ड है, इन द शेप ऑफ सम प्रोटेक्टिव फ्रेम है, जिसमें इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है, उसके मुतालिक डिटेल्स दी जा सकती हैं, जो भी कैटेगरीज हैं. लेकिन फिर पैकेज के अंदर वो कैटेगराइजेशंस भी हैं या वो करेक्टरिस्टिक्स या वो पार्ट्स भी हैं जो उसको एक होल का फ्रेम देते हैं. मैं वो अभी अगले ही स्लाइड में आपसे डिस्कस करता हूं कि व्हाट आर दोज differentiating points which may be incorporated in the packaging system. Last and the final is the brand decisions. Now, if I look at the brand decisions, then those brand decisions, even though they have acquired a very high standard and living, but brands के ऊपर एक separate course ही बेहतर होगा. But we will touch these significant points in terms of branding decisions so that we are aware कि strategic decisions में एक major component branding का है. Having said that, let me go back to the packaging logic, क्योंकि यहाँ मुझे एहसास है कि कई लोग पैकेज को सिर्फ उसके ऊपर जो कवरिंग होती है हम उसको भी लेते हैं. लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो पैकेज पूरा पैकेज है जो आप प्रेजेंट करते हैं एक कंज्यूमर को, जिसमें उसका प्रमोशनल फ्रेमवर्क, उसके लिए आफ्टर सेल सर्विसेज, उसमें जो कुछ भी है. तो हम उसको देखने के लिए वी विल सी कि ये जो प्रोडक्ट की जो उसका जो पैकेजिंग का जो मैंने कॉन्सेप्ट दे रहा हूं या जो मैं बात कर रहा हूं, उसको इस अंदाज से देखने में भी फायदा होगा. नाउ लुक एट द वे द प्रोडक्ट इज. पहले तो कोर प्रोडक्ट होगा जो आप ऑफर करेंगे टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड. लेकिन उस कोर प्रोडक्ट के अंदर एक उसका बेसिक प्रोडक्ट कंपोनेंट होगा, जिसको हम कहते हैं कि जो भी कोर प्रोडक्ट था वो एक इंटेंजिबल किस्म की चीज थी जो आपने ऑफर करनी है मार्केट में. बड़ा पुराना और बड़ा ही मशहूर एग्जांपल है कि कोर प्रोडक्ट के अंदर अगर हम ये कहें कि किसी ने दीवारों में सुराख करना है, तो एक्चुअली वी आर सेलिंग द होल्स इन द वॉल एंड नॉट द ड्रिलिंग मशीन, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन इज अ मेथड टू सिक्योर द वैल्यू दैट द कस्टमर इज लुकिंग फॉर व्हेन ही ट्राइज टू गेट अ प्रोडक्ट. तो कोर प्रोडक्ट तो उसकी डेफिनेशन ये है. लेकिन जब हम उसको टेंजिबलाइज करते हैं, यानी कि जब हम उसको एक शेप देते हैं,
तो हम उसको बेसिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसके अंदर कम से कम वो करेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं कंज्यूमर को which will be able to support या supplement या provide for the benefits of the core product. Benefits of the core product, that is the core idea behind it. कि जो benefits core product में आप जिक्र में कह रहे हैं, उसको हम कोई शेप देंगे जिससे वो नजर आए कि वो core product will be the value that is in the core product will be achieved. Now ये जो basic product है, उसमें मैं जो कह रहा था आपको पैकेजिंग के हवाले से, तो ये जो basic product है, इसमें वो जो कवरिंग पैकेज है वो शामिल हो जाएगा। लेकिन जो चीजें सारी इस प्रोडक्ट में आ रही हैं, जिसके अंदर अब हम जाएंगे, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का जिक्र भी करेंगे कि ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स आर सर्टेन फीचर्स व्हिच आर एडेड टू मेक द कंज्यूमर हैप्पी। नाउ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इज कि अगर एक कंज्यूमर के जहन में एक एक्सपेक्टेशन है कि इस कोर प्रोडक्ट से या ये जो बेसिक प्रोडक्ट मुझे दिया जा रहा है, इससे मुझे कुछ चीज़ें हासिल होंगी, और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो है उसमें आप वो फीचर्स ऐड करते हैं जो उससे भी ऊपर चले जाते हैं, उसके अंदर वो वैल्यू क्रिएट करने के लिए, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, वेदर इट इज़ थ्रू सर्विस प्रोविजंस, वेदर इट इज़ थ्रू प्रमोशनल फ्रेमवर्क्स, व्हाटएवर, द आइडिया इज टू क्रिएट अ हायर लेवल ऑफ वैल्यू देन व्हाट द कस्टमर एक्सपेक्टेड। नाउ अगर ये बात मैं कहूं, तो सारी जो चीजें हम ये करेंगे वो पैकेट बन जाएगा जो कंज्यूमर को ऑफर किया जा रहा है इन द शेप ऑफ अ पोटेंशियल प्रोडक्ट। सो जो भी कुछ पैकेजिंग में आएगा, उस पैकेजिंग के अंदर, जब मैं पैकेजिंग की बात करता हूं तो वो एक इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट के हवाले से बात कर रहा हूं कि ये जो पैकेजिंग आप ऑफर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, उसमें ये सारी चीजें शामिल हो गई। लेकिन अगर हम पैकेज डिसीजन को सेपरेटली लें, तो फिर सिर्फ वो डिसीजन होगा कि इस प्रोडक्ट को किस चीज के अंदर रख के पेश किया जाए, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो एक सेकंड कैटेगरी हो जाएगी जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। नाउ अब हम क्या नाम है, वी हैव नाउ कम टू द प्लेस वेयर वी कैन नाउ स्टार्ट थिंकिंग स्ट्रैटेजिकली। मैंने आपको कहा कि ग्रोथ की लॉजिक है, अगर नहीं हो तो प्रोडक्ट्स ज्यादा तैयार ना हो, देयर वुड नॉट बी अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस। और फिर जो हमारा पीएलसी का कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, वो भी ठीक नहीं समझ आता। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की भी लॉजिक यही है कि प्रोडक्ट्स अपनी जिंदगी गुजारते हैं, खत्म होते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स आर मूविंग इन, और फिर उसके पीछे भी एक प्रोसेस है। तो इन चीजों को तो हमने अभी करना है, वी विल बी डूइंग दैट इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस। बट टुडे व्हाट आई वुड लाइक टू गो इनटू इट इज कि जो बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं जिनके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, जैसे मैंने कहा मार्केट में जाना है, कितनी मार्केट्स में जाना है, प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं या नहीं लेकर आने, तो इसके लिए एक क्या नाम है, मैट्रिक्स है या एक फ्रेमवर्क है जो कि कहलाता है ग्रोथ मैट्रिक्स। उसके लिए मैं उसके जो ओरिजिनल ऑथर हैं या जो है उनके हवाले से इसकी बात करूंगा। उनका नाम था एन्जॉव, तो हम उनको एन्जॉव मैट्रिक्स के हवाले से बात करते हैं। दिस इज हाउ वी स्पेल इट, एंड दिस रिसर्चर academician, a very very well known American क्या नाम है, research person and academician, presented us with a framework where we have to come to a conclusion in terms of how can the growth be maintained, how can we maintain the growth strategies that we are interested in। और उसके अंदर हमारे पास दो बेसिक लॉजिक्स होंगे। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी हम शुरू करते हैं किसी भी स्ट्रैटेजिक लॉजिक को, तो उसमें प्रोडक्ट मार्केट स्कोप डिफाइन कर लेते हैं। तो जब हम शुरू करेंगे तो हमारी लॉजिक हमेशा उस प्रोडक्ट मार्केट स्कोप से होगी जहां हम करंटली इंटरेस्टेड हैं और हमने अपना प्रोडक्ट जो है उसमें रखा हुआ है। तो वो प्रोडक्ट मार्केट स्कोप को अब हम देख रहे हैं प्रोडक्ट और मार्केट के हवाले से। सो इफ आई पुट P फॉर प्रोडक्ट एंड M फॉर द मार्केट, तो अब हम उसकी लॉजिक में इन चीजों पे ले आएंगे कि अगर न्यू प्रोडक्ट हो और न्यू क्या नाम है मार्केट हो, या ओल्ड प्रोडक्ट हो या ओल्ड मार्केट हो, यहां भी न्यू प्रोडक्ट है और न्यू मार्केट है, और यहां ओल्ड प्रोडक्ट है और ओल्ड मार्केट है। नाउ अगर हम इस ओल्ड प्रोडक्ट और इस ओल्ड मार्केट को लेते हैं और हम
कहीं भी नहीं जाना चाहते, हम उसी मार्केट में रहना चाहते हैं, उसी प्रोडक्ट के साथ हम काम करना चाहते हैं। तो ये जो ए कैटेगरी बनती है, इसमें हमारी स्ट्रैटेजी जो है ग्रोथ की वो सिर्फ पेनिट्रेशन होगी। वी विल हैव टू कंटिन्यूअसली ट्राई एंड capture the market, the users, by creating for the product usages या increase the number of times the product is used. For example, अगर कोको कोला पेनिट्रेशन करना चाहता है या पेप्सी कोला मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहता है, तो दे कैन स्टार्ट प्रमोटिंग क्या नाम है कोको कोला या पेप्सी कोला एज अ ब्रेकफास्ट ड्रिंक। नॉर्मली हमने देखा है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है ये नॉर्मली रिलैक्सेशन या कैजुअल टाइम के ऊपर विद नो फिक्स्ड मोमेंट्स पिया जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लंच पे, शाम को या कभी कभी डिनर के साथ भी पिया जाता है, पर्टिकुलरली जब रेस्टोरेंट में हो या घरों में भी कोको कोला बच्चों के साथ पी जाती है। अब मैं उसी मार्केट के अंदर, उसी फैमिली मार्केट के अंदर, उसी टारगेट में इसको फर्दर पेनिट्रेट करना चाहूँ, तो एक लॉजिक तो मेरे पास है कि मैं कहूँ कि ब्रेकफास्ट पे भी ये पिया जाए। दूसरा मेरे पास पॉसिबिलिटी ये है कि अगर 250 ml की बॉटल है 250 ml की, तो मैं प्रमोशनली उसको 500 ml पे ले जाऊं, सो दैट एक ही परचेज में जो शख्स परचेज कर रहा है वो बजाय 250 ml के 500 ml खरीदेगा, तो नेचुरली कंजम्पशन जो है और सेल बढ़ जाएगी। तो ये तो लॉजिक है अगर हम पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी जिसके अंदर हम ओल्ड प्रोडक्ट और ओल्ड मार्केट को ही मद्देनजर रखते हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट न्यू लेकर आते हैं और मार्केट हमारे पास ओल्ड ही हो, प्रोडक्ट न्यू है और मार्केट ओल्ड है, तो हम बी मार्केट या बी स्ट्रैटेजी में है जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है। देयरफॉर व्हाट वी आर सेइंग इज कि चूंकि जो मार्केट है वो पुरानी है, लेकिन जो नया प्रोडक्ट हम लाना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट अगर नहीं, सॉरी I apologize, new product and old market है, तो we are going for product development here. So we are going for product development here because the product is new but the market is old. मतलब ये हुआ कि आप उसी मार्केट में रहते हुए उसमें नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, trying to find segments और trying to find new usages for the market. प्रोडक्ट हमारा जो है वो नया है, लेकिन हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो उस मार्केट के अंदर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर माय मार्केट इज लेट्स से हाउस होल्ड क्लीनिंग इक्विपमेंट। हाउस होल्ड क्लीनिंग इक्विपमेंट में अभी तक मैंने सिर्फ केमिकल्स बनाए थे, और केमिकल्स थे लाइक वी हैव क्या कहते हैं, जैसे ज़मीन को साफ करने के लिए क्या नाम है क्लीनिंग लिक्विड्स होते हैं, क्लीनिंग हमारे पास वॉशिंग के लिक्विड्स होते हैं। अब हम शिफ्ट कर जाते हैं उसी मार्केट में रहते हुए और हम स्पॉन्ज बनाना शुरू कर देते हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग एज अ कंपोनेंट पार्ट। हम ब्रूम्स बनाना शुरू कर देते हैं जिससे सफाई में मदद मिलती है। तो केमिकल्स से जो कि उस मार्केट में क्लीनिंग में शामिल हो रहे थे, नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग products and accessories which can be used supplement the cleaning process. So from chemicals we have moved into, let's say, scoring pads. Scoring pads are जिसके साथ हम खुरच के चीजें साफ करते हैं, ब्रूम्स हैं, क्या नाम है झाड़ू हैं। ये चीजें अगर हम ले आते हैं तो मार्केट वही है क्लीनिंग मार्केट, लेकिन उसमें अब हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। तो दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कि प्रोडक्ट न्यू हो और मार्केट ओल्ड ही हो। लेकिन जब हम ओल्ड प्रोडक्ट को न्यू मार्केट्स में लेकर जाएं तो हम मार्केट डेवलपमेंट प्रोसेस में होंगे, which means कि we are now developing new markets for old products. इसकी एग्जांपल ये है कि जो पुराना प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे सोडा है, सोडा इज नॉर्मली यूज्ड, बेकिंग सोडा इज नॉर्मली यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस। तो वो उसकी मार्केट जो बेकिंग सोडा था उसकी मार्केट थी कुकिंग पर्पसेस, बट जो ये बेचने वाले थे दे फाउंड आउट कि इसकी मदद से जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें जो खुशबू होती है या बदबू होती है गोश्त के रखने से, फिश के रखने से, तो अगर सोडा आप उसमें रखें
तो उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है. सो नाउ व्हाट दे हैव डन इज कि जो सोडा विच वाज यूज्ड फॉर बेकिंग पर्पसेस, उसके लिए उन्होंने एक नई मार्केट ढूंढ ली, और वो नई मार्केट थी एज अ डिओड्रेंट. So components of that has been used for deodorizing purposes. Second, soda, which was used for baking purposes, was also found to be effective in cleaning the teeth. So toothpaste के अंदर soda जाना शुरू हो गया. So therefore a new market was created. Now this is an interesting area where an old product like the soda was being now located into new markets. And in the same form, अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में अगर ये प्रोडक्ट चल रहा था और अब यहाँ उसकी कैपेसिटी या उसकी जो सैचुरेशन हो चुकी है, और मैं एक नई मार्केट लेट से बांग्लादेश में वो प्रोडक्ट ले जाऊं, तो आई एम स्टिल गोइंग इनटू द सेम मार्केट डेवलपमेंट फेज. तो मकसद क्या है कि व्हेन यू यूज द सेम ओल्ड प्रोडक्ट एंड मूव इनटू अ न्यू मार्केट स्कोप डेफिनेशन, so we are going into market development. Finally we have कि जहां प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी टोटली नई है. Now इस कंडीशन के अंदर we have gone into diversification, and we will talk about this extensively in the subsequent areas. So diversification becomes an important strategy for products, which means कि अब इस वक्त company has assumed that उनके पास जो product capacity थी within a particular category वो ख़त्म हो गई है. Now they have to go into a new product, but that product is entirely for a new market. तो जब तक ये product market scope define नहीं होगा, तो हमें इस लॉजिक की जो एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स के हवाले से है, मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स, एंड व्हेन आई गिव यू दी स्लाइड्स तो वो भी क्लियर कर देगा. और ये जो मेरे से यहाँ गलती हुई, दैट विल आल्सो बी एलिमिनेटेड आउट ऑफ द सिस्टम, सो वी विल क्लियरली नो. बट लेट मी रिपीट इट बैक. ओल्ड प्रोडक्ट, ओल्ड मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, ओल्ड प्रोडक्ट into the new market, market development, new product in old market, product development, new product, new market, diversification. This covers the logic of understanding what are the possibilities of growth using the product decisions. Or obviously product का ताल्लुक market से है. So when we look at the product development framework, we are looking at a comprehensive, holistic point where we can actually understand the product market development problems. तो अब जब हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो we are now more or less coming to the conclusion कि we need to figure out कि जो products हैं, क्या हम, जैसे मैंने आपसे कहा कि product वही रहे और वही market रहे, तो हम उसमें product line में इजाफा करते हैं, which means that the product line goes depth wise. कि एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर अब हम मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना उसमें डाल रहे हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन ऑफ कोका कोला और पेप्सी कोला और सॉफ्ट ड्रिंक्स के एक 250 की मिलीलीटर की बोतल है, फिर 1 लीटर की बोतल है, फिर 500 मिलीलीटर की बोतल है, फिर 1.5 लीटर की बोतल है. ये प्रोडक्ट लाइन है, और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज उस लाइन में उस खास प्रोडक्ट जो है हमारे पास उसमें जब इजाफा होता जाए, तो we can say that we have a depth in the product line. Now अगर हम उसके मुकाबले में एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च कर दें, या उसके मुकाबले में या उसके साथ ही हम एक नए प्रोडक्ट की चीज़ को इजाफा कर दें, जो मैंने आपको उधर एक्सप्लेन किया था एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स में, which is basically product development, तो we are now creating a width in the product mix. Product mix में यानी कि we are now adding categories of various products in our full dimension. तो जैसे मैंने कहा, अगर हम उसकी डेप्थ को देखते हैं तो it goes deep, which means each product line has a number of offerings. But if we say that there are number of categories, तो product जो हमारी जो width है product line की वो बढ़ जाती है. लेकिन जब हम इन सारों को जमा कर लें, लाइन में भी हैं और product categories में भी हैं, तो we get a product mix. So when in the next class, I will clear this logic of again using the chart and the PowerPoint कि what is the product mix, because जब हम product mix के decisions लेते हैं कि we have to now whether we should penetrate the market, go into new product development within the same old market, should we find a new market,
move a new product into that market. तो इसको हमारे जो major component decision है वो product mix decision है. So coming to the conclusion of today's framework, I introduced you to the logic of the product decisions or strategic decisions which are relevant to the product, so that we can start thinking strategically of where and how the decisions can take place. Having said this, we've already explained कि ये जो decisions हैं of not having only one product but multiple products, whether in product line system or product categories or product mix framework में, उसका मकसद है कि कंपनी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और उसके रिस्क को कम से कम करना. So in the next session we will take up the logic of why product mix are important, how can we manage these product mix, और उसके साथ जो related tools हैं जिसमें I will be talking about the product life cycle just to give you a framework, as well as portfolio analysis. तो फिर मैं उसके ऊपर आपको will give you a better picture of what can happen in the next stages of product development. Okay, with this, take care and Allah Hafiz.